All right, so good evening, friends. Welcome you all to PSIR Edge channel on Telegram. So today's agenda is to finish NATO वाला topic. This is part of topic number 7 जो political वाला topic था ना, उसमें थोड़ा सा बचा हुआ था. इसको खत्म करेंगे, फिर we'll do the next topic number 8. सर प्लीज पढ़ लीजिए इसको. हाँ. NATO, North Atlantic Treaty Organization. What has been the role of NATO? During Cold War, NATO has been critical factor for the security of Western European countries. So far the most successful military alliance. It played critical role in establishing USA's hegemony in Western Europe. NATO has been dominated by USA. NATO is an institution where European countries outsourced their security, but now they are realizing the strategic gaps exist. The end of Cold War and dissolution of Warsaw Pact led to the question mark on the continuation of NATO. In fact, NATO's actual military operations took place after the end of Cold War. First in Bosnia, second in Kosovo, third in Afghanistan. NATO has modified its strategic concept as suggested by John Lewis Gaddis. The disintegration of USSR meant not the end of threat of US's security. It only made the diffusion of threats. It has made the threat management more challenging. Hence NATO has gone for new approach to crisis management. Now NATO is oriented against the nuclear proliferation, cyber attacks, terrorism, piracy, ethnic conflicts. In the immediate context of end of Cold War, NATO operated beyond borders. Now at present, as Russian threat is rising in context of its actions in Crimea, NATO is coming back home. NATO exercises in Europe has deteriorated the security environment. There has been criticism of NATO by USA. According to USA, European countries are not spending as per the requirement and there is an unfair burden on USA. USA is the biggest contributor in NATO, spends 4% of its GDP. USA expects Germany to fast increase its NATO budget, minimum 2% of its GDP. According to USA, real advantage of NATO is for European countries. According to Trump, it is difficult to convince American taxpayers as to why they should be spending more on European security than Europeans themselves. Attitude of European countries. शायद यहाँ तक कोई समराइज करना चाहेगा? हाँ, let me try to summarize. हाँ. कोई और करेगा क्या? ठीक है, तो पहले यही बोल रहे कि कोल्ड वॉर तक, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर क्या रोल था, आफ्टर कोल्ड वॉर क्या रोल है. तो नाटो क्रिटिकल था वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के लिए, क्योंकि उस टाइम पे मतलब मोस्ट सक्सेसफुल मिलिट्री अलायंस था ये. एंड इसकी वजह से यूएसए की हेजेमनी वेस्टर्न यूरोप में बनने में काफी हेल्पफुल रहा था ये नाटो. तो नाटो हैज बीन डोमिनेटेड बाय यूएसए एंड इसमें इसका मतलब यह हो गया ना कि यूरोपियन सिक्योरिटी ने अपनी सिक्योरिटी आउटसोर्स कर दी ये नाटो की वजह से. लेकिन जब एंड ऑफ कोल्ड वॉर हुआ तो डिसोल्यूशन ऑफ वार्सो पैक्ट हो गया. तो फिर क्वेश्चन मार्क आया कि भाई नाटो की अब जरूरत क्या है, बिकॉज कोल्ड वॉर तो खत्म हो गया है, जो जिस काम के लिए बना था वो तो खत्म हो गया है. तो फिर इसके बाद में उन्होंने अपना मतलब स्ट्रेटेजिकली थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया कि क्या क्या पर्पस है नाटो का. जैसे नैम वालों ने किया था ना, उसी तरीके से इनका भी हो गया. तो एज सजेस्टेड बाय जॉन लीविस गडिस, इन्होंने बोला है कि द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर मींट नॉट द एंड ऑफ थ्रेट ऑफ यूएसएस सिक्योरिटी, इट ओनली मींट डिफ्यूजन ऑफ थ्रेट्स. तो बेसिकली यही था कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, मतलब कि थ्रेट खत्म नहीं हुआ यूएसए की सिक्योरिटी का, बट डिफ्यूजन हो गया, मतलब बहुत सारे थ्रेट्स है. अब पता ही नहीं चलने वाला भाई एनिमी कौन है, कहाँ से थ्रेट आएगा. तो इसीलिए नाटो का जो मैनेजमेंट है ना, वो चेंज करके उन्होंने क्राइसिस मैनेजमेंट ज्यादा फोकस कर लिया, नया अप्रोच लेके आए. तो फिर नया अप्रोच क्या था? दे फोकस्ड ऑन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, साइबर अटैक्स, टेररिज्म, पायरेसी, इथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स एक्सेट्रा. And immediate context में after Cold War, NATO operated beyond the borders. And फिर वही मतलब रशियन थ्रेट जो क्रीमिया में, यूक्रेन में भी देख रहे हैं अपन, उसके कंटेक्स्ट में भी NATO रेलेवेंस दिखाता है कि NATO इज कमिंग बैक नाउ, इसकी इंपॉर्टेंस है.
एंड फिर नाटो को यूएसए भी क्रिटिसाइज करता है कि यूएसए मतलब यूरोपियन कंट्री स्पेंड नहीं कर रहे ज्यादा, अनफेयर बर्डन है अमेरिका के ऊपर। यूएसए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर है मिलिट्री एक्सपेंडिचर में, 4% करता है, एंड हेंस दे हैव आस्क्ड जर्मनी वगैरह टू इंक्रीज देयर बजट, नाटो का बजट। ठीक है, फिर यूएसए का रियल एडवांटेज ऑफ नाटो इज फॉर यूरोपियन कंट्रीज। ट्रम्प ने बोला है कि डिफिकल्ट है अमेरिकन टैक्स पेयर को कन्विंस करना कि व्हाई शुड दे कंटिन्यू टू स्पेंड ऑन यूरोपियन सिक्योरिटी मोर देन द यूरोपियन देमसेल्व्स। ठीक है, और एक और इसमें याद रखेंगे कि जो जॉन मीरशाइमर है, he has blamed USA's policies of NATO expansion, यूरोपियन यूनियन का एक्सपेंशन, फॉर रशिया एग्रेशन इन यूक्रेन। मतलब बेसिकली वो ये कह रहा है कि जो नाटो के पॉलिसीज है या फिर यूएस के जो पॉलिसीज है उसके वजह से रशिया इज बीन कॉर्नर्ड, जस्ट लाइक द वे यूएसए कैनॉट टॉलरेट कि रशियन आर्मी क्यूबा में आएगी, उसी तरीके से रशिया कैनॉट टॉलरेट कि यूएस की आर्मी या फिर नाटो यूक्रेन में आ जाए। ठीक है सर, कंटिन्यू करें। Attitude of European countries. European integration has strengthened the position of Europe, challenging the hegemony of dollar. Even USA has huge trade deficit with European Union. EU countries feel that USA's policies in Middle East and towards Russia are actually not in the interest of Europe. USA has put Europe in a situation where they have been used by the USA to fulfill USA's ambition at a huge cost. There was a complete disagreement between the USA and Germany with USA's war with Iraq in 2003. The crisis in Syria has huge repercussions for European Union's integration project. Migrant crisis, refugee crisis. Brexit is the first fallout. New members of EU are having extremely adversarial relations with Russia. Instead of being pro-Europe, they are being pro-USA. They are brought by US to weaken EU. Now EU is feeling the heat of the US's containment policies. They are getting disillusioned towards NATO. They have made themselves vulnerable to the security threats from Russia as well as non-state actors. In a very explicit term, Trump has mentioned EU trade foe. Germany. Germany itself has been instrumental in rapprochement with the East. As an economic powerhouse, it looked at the end of Cold War as an opportunity. Germany shares the approach of Russia to have cooperative security in Europe. It developed economic integration with Russia. It has been biggest trading partner with Russia in Europe. Germany didn't favor continuous expansion of NATO and expansion of EU also. इतना कोई कर देगा? या कंटिन्यू कर दूं? हाँ मैं करता हूँ। सर आप कर लीजिए 1-2 पॉइंट्स। करो क्या? कर लीजिए नवीन सर, प्लीज समराइज। ओके, वही यार एटीट्यूड की बात कर रहा है कि ईयू का क्या एटीट्यूड है नाटो को, उनके अपने कंसर्न है। पहला बोल रहा है कि ईयू का इंटीग्रेशन से पोजीशन तो स्ट्रेंथन हुई है यूरोप की, चैलेंज ये डॉलर की हेजेमनी को ये लोग चैलेंज किए हैं, लेकिन कुछ इशू भी है। पहला इशू तो यही है कि यूएसए अपने इंटरेस्ट के लिए नाटो को यूज करता है और कहीं भी कुछ भी कर देता है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया है कि ईरान में ये लोग घुस गए थे, वॉर कर दिया था, ठीक है। यहाँ अफगानिस्तान बोल सकते हैं, सीरिया बोल सकते हैं, अब यूक्रेन क्राइसिस भी बोल रहे हैं कि यूएसए की वजह से हुआ कि दे आर स्पेंडिंग द क्या नाम है नाटो को, जो यूरोपियन कंट्री का अपना कंसर्न है। तो पहला पॉइंट तो ये होगा, ब्रेक्जिट ये लोग कर लिए कि क्या नाम है ब्रिटेन वाले, ताकि इनको बर्डन ना फेस करना पड़े। तो न्यू मेंबर्स ऑफ द ईयू हैविंग एक्सट्रीमली एडवर्सरी रिलेशन विद देम। तो ईयू वाले को क्या दिक्कत हुई है कि रसिया के साथ इनका 36 टाइप का कुछ आंकड़ा हो गया है। तो जो नए मेंबर आ रहे हैं इसके अंदर क्या नाम है नाटो के अंदर, वो प्रो यूरोप होने की बजाय प्रो यूएसए है, ठीक है, क्योंकि उनका रिलेशन है जो रशिया के साथ वो अच्छा नहीं है, इसलिए प्रो यूएस हो रही है। तो इसलिए वीकन वगैरह हो गए हैं। और ट्रंप ने तो बोल दिया था कि यूएन उनका ट्रेड फो है। जर्मनी ने कुछ चेंज किया है अपना, उन्होंने क्या नाम है रशिया के साथ अपने रिलेशन अच्छे किए, तो वो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। वो गैस पाइपलाइन आपने देखी होगी, न्यूज में चल रहा था, तो ये सब इन्होंने किया है। तो जर्मनी फेवर नहीं करता है कि नाटो का एक्सपेंशन हो और एक्सपेंशन ऑफ ईयू भी।
तो ये सब है। Okay. New approach of EU. Efforts to build their own defense. Strengthen partnership with China. China has already made inroads in entire Europe. The latest being China's integration with Central and East European countries through the platform known as 16+1. EU is also talking about the multipolar world and has recently brought a new strategy aiming to strengthen relations with India also. Future of NATO. Though the distancing is growing, yet in immediate context, NATO will continue. With no other region, EU countries can have as much ideological and political symmetry as USA. They have overlapping values and interests. They have historical comforts. They continue to suffer security dilemma from Russia. They have structural differences with China. Everyone knows China itself is to be blamed for the destruction of liberal international economic order. It will take long time for euro to become a global currency. Hence, Europe's outreach to China, Russia, India, strategic divergences with USA on Iranian issue seems to be EU's policy to tap institutionalized Russophobia found in USA to gain some bargaining points to build a more balanced relationship with USA. USA's approach towards NATO. One of the distinctive features of Trump's foreign policy is to play the game of bad cop and good cop. If Trump criticized NATO, the Defense Secretary of USA, Mattis, mentions that USA has iron-clad commitment to NATO and European security. Current state of transatlantic relations. Current trend: the future of NATO has become uncertain. Why? According to US President, NATO is also one of the worst agreement ever. It is harming US's interest. French President Macron at EU Summit held that Europeans can no longer rely on USA for its security. German Chancellor Angela Merkel held that we will not let ourselves to be pushed around time and again we will act. European Union has strengthened creating PESCO, Permanent Structured Cooperation. PESCO is an attempt to created a defense force of European countries as a part of growing defense and security cooperation to gain strategic autonomy. EU is deepening its partnership with China. Germany already had strong interdependence with Russia, and French president is strengthening relationship with Putin. Recently, European Union has decided to create an alternative channel to buy oil from Iran, avoiding the use of dollar. This will grant protection to EU banks as they are not going to use dollar. This non-American monetary channel to Iran includes China as a party. There is a huge resentment in EU with respect to Trump's decision to come out of the nuclear deal with Iran, Paris Climate Agreement, attempt to undermine WTO, and starting new phase of the Cold War with Russia. NATO is Collective Defense Pact formed in 1949. Article 5 of the NATO mentions that armed attack against one shall be considered as armed attack against all. As of now, NATO has 29 members. The last one joined was Montenegro in 2017. Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Georgia and Ukraine are the prospective members. ओके, तो समराइज कर दीजिए. कोई करना चाहेगा? क्रिएचर, जार्गन. हाँ, कर दीजिए. तो सर जर्मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है ना? नहीं, न्यू अप्रोच. तो सर इन्होंने क्या कहा है कि जो ये ईयू वाले हैं, यूरोपियन यूनियन वाले हैं, इन्होंने मतलब अपने एफर्ट्स बिल्ड करे हैं चाइना के साथ में. जैसे 16+1 है, ये 16+1 में इन्होंने क्या करा है, जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज हैं
उनके साथ में चाइना ने अपने रिलेशन अच्छे करे हैं, यही बताया इन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में। फिर इन्होंने ये कहा है कि जो यूरोपियन यूनियन है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड की भी बात करता है और एक नई स्ट्रेटजी को मतलब बना रहा है, और इंडिया के साथ भी मतलब अभी रिसेंट में देखा था कि हमने कि इंडिया के साथ में यूरोपियन यूनियन की एक डील साइन हुई थी अराउंड 300 मिलियन या बिलियन, कुछ ऐसी डील थी, वो भी मतलब स्ट्रेंथन कर रहा है नई नई कंट्रियों के साथ में यूरोपियन यूनियन यूएसए को बाईपास करने के लिए। फिर उन्होंने बताया फ्यूचर ऑफ नाटो, क्या है फ्यूचर ऑफ नाटो का। तो उन्होंने कहा है कि तो द distancing is growing yet in immediate context NATO will continue with no other region। तो इन्होंने कहा है कि सर जो यूरोपियन यूनियन है और जो ये नाटो है, इनके बीच में आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल सिमेट्री है, मतलब डिफरेंसेस है यूएसए को लेके, और ये ओवरलैपिंग वैल्यूज भी करते हैं। जैसे पहले जो ब्रिटेन था वो एज ए पावरफुल कंट्री था, लेकिन यूएसए फिर बाद में मतलब एक कंट्री उभरा और एक पावरफुल कंट्री बनी। तो कहीं ना कहीं के जो उनके जो इंटरेस्ट है और जो वैल्यूज है उनको भी ओवरलैप करता है, यही बताया इन्होंने, हिस्टोरिकल कंफर्ट्स वगैरह ये सब। फिर ये बताते हैं कि जो यूरोपियन यूनियन है वो रशिया के साथ में भी क्या कहते हैं सिक्योरिटी डायलेमा फेस करता है, और स्ट्रक्चर्ड डिफरेंसेस है चाइना के साथ में भी, क्योंकि चाइना की जो पॉलिसीज है वो डिफरेंट है और इनकी अलग है। और एक ये भी कह सकते हैं कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, वे कम्युनिज्म को ज़्यादा फेवर करते हैं और ये डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स है उसको ज़्यादा फॉलो करते हैं। फिर इन्होंने यही कहा है आगे, फिर इन्होंने कहा है हाँ, फिर ये कहते हैं कि जो ये डॉलर ये स्प्रेड हो रखा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसको काउंटर करने के लिए कहते हैं कि यूरो को हम वो करेंगे, मतलब यूरो से हम अपने ट्रेड को कंप्लीट करेंगे। और इसके साथ में ये इन्होंने ईरान के साथ में भी एक डील कर रखी है। इन्होंने ईरान के साथ में डील जो कर रखी है उसमें क्या कहते हैं जो ऑयल इंपोर्ट वगैरह करते हैं वे डॉलर के थ्रू नहीं करते, वे यूरो के थ्रू करते हैं। फिर है फिर इन्होंने क्या लिखा है, यूएसए अप्रोच टूवर्ड्स नाटो। तो इन्होंने ये कहा है कि हाँ, तो इन्होंने कहा है कि जो ये ट्रम्प ने मतलब ये बताया कि बैड कोप क्या होता है और गुड कोप क्या होते हैं, ट्रम्प ने ये सब बताया। और फिर ट्रम्प ने क्रिटिसाइज करा नाटो के डिफेंस सेक्रेटरी को, यूएसए मैटिस, और उसने मेंशन करा कि मतलब उसने ये कहा कि जो यूएसए है उसके ऊपर ये मतलब ये बना हुआ है कि यूएसए को इनकी सिक्योरिटी को यूएसए को ही हैंडल करना है। तो उसने उसने ये सब कहा। और उसके बाद में सर फिर ये करंट एक सेकेंड शायद ये पॉइंट थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं वो लोग कि यूएसए यहाँ पे गुड कॉप और बैड कॉप दोनों प्ले कर रहा है। मतलब उनका ये मीनिंग है कि एक साइड पे ट्रम्प क्रिटिसाइज कर रहा है नाटो को, और दूसरे साइड यूएसए का जो सेक्रेटरी है मैटिस, वो कह रहे हैं कि ये आयरन क्लैड कमिटमेंट्स है नाटो का यूरोपियन। आयरन क्लैड मतलब कि वो सॉलिड कमिटमेंट है उनकी सिक्योरिटी की तरफ। मतलब एक साइड इफ ट्रम्प क्रिटिसाइड द डिफेंस सेक्रेटरी सपोर्टेड, ऐसा मतलब यूएसए दोनों गेम प्ले कर रहा है एट द सेम टाइम, इसलिए ये पॉइंट कह रहा है ये वाला पैराग्राफ। हाँ ठीक है, कंटिन्यू। हाँ, तो सर फिर इन्होंने कहा है कि जो करंट ट्रेंड चल रहा है वो ये लिखा है कि जो नाटो का जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है। क्यों है अनसर्टेन, उन्होंने रीजन बताया है। अकॉर्डिंग टू यूएस प्रेसिडेंट, उसने कहा है कि जो नाटो है उसने सबसे ज़्यादा गंदे एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं आपस में यूएसए के साथ में भी। मतलब कभी अभी भी हमने देखा कि जैसे ये नाटो कंट्रीज थी, मतलब जो नाटो कंट्रीज है और इसमें यूरोपियन यूनियन भी पार्ट है उसमें। तो अभी रशिया के केस में हम देख रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन के मतलब अलग से चल रहे हैं। मतलब जर्मनी वाले वो मना करते हैं कि हम वो नहीं करेंगे क्योंकि जर्मनी की ज़्यादा डिपेंडेंसी है ऑयल पे, लेकिन जो अमेरिका है उसकी 8% ही है। तो उसने तो अमेरिका ने तो मना कर दिया, और मतलब जर्मनी कह रहा है कि हम कंटिन्यू रखेंगे। तो मतलब एग्रीमेंट जो इनके बीच में है वो बहुत ख़राब है, और जो कहीं ना कहीं से यूएसए के इंटरेस्ट को ख़राब करते हैं। फिर उन्होंने कहा है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन ने ईयू समिट हुई थी उसमें कहा कि यूरोप मतलब यूरोप रिलाई नहीं कर सकता यूएसए के ऊपर।
और जो भी वो मतलब वो सिक्योरिटी वगैरह की बात करता है उनको उसके ऊपर वो रिलाई नहीं कर सकता। अभी देखा भी हमने रिसेंट के केसेस में, और भी बहुत ज़्यादा केसेस है जैसे अफगानिस्तान हो गए, सीरिया वगैरह, इन सब में। पर वो अलग चीज़ है, वो अलग बाहर की कंट्रीज है, लेकिन वो रिलाई नहीं कर सकता क्योंकि उसने देख लिया। फिर इन्होंने लिखा है कि जर्मन चांसलर है एंजेला मार्कल, उन्होंने भी कहा है कि we will not let ourselves to be pushed around time and again we will act। मतलब हम समय के साथ में वो नहीं कर सकते, कोई डील नहीं कर सकते, और हम मतलब अगर कुछ भी अगर बात होती है, कोई भी दिक्कत होती है, तो हमें खुद ही एक्ट करना पड़ेगा। फिर इन्होंने ये भी कहा कि यूरोपियन यूनियन ने ये इन्होंने ये डायलॉग बनाया है क्या, ये पेस्को परमानेंट स्ट्रक्चर्ड कोऑपरेशन, मतलब एक वो बनाया है, क्रिएट करा है। वो पेस्को इन्होंने इसलिए बनाया है कि एक डिफेंस फोर्स ऑफ यूरोपियन कंट्री, जैसे नाटो में तो यूरोपियन कंट्रीज के देश भी और बाकी की भी कंट्रीज हैं, यूएसए वगैरह, कनाडा वगैरह, तो इन्होंने अलग से बनाया है पेस्को, डिफेंस को, इनकी जो डिफेंस की नीड है उसको फुलफिल करने के लिए। फिर इन्होंने बताया कि यूरोपियन कंट्रीज एज ए पार्ट ऑफ ग्रोइंग डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन टू गेन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मतलब ये दोबारा से यही कहना चाहता है कि जैसे वो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें यूएसए की जो पावर थी वो इंक्रीज हो गई थी, तो यूरोपियन यूनियन के जो बाकी के जो देश थे इनकी पावर इंक्रीज नहीं हुई थी, तो ये दोबारा से वही चाहते हैं कि हमारी दोबारा से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वगैरह बने। फिर इन्होंने यही बताया कि ईयू ने अपने जो डीपनिंग रिलेशंस करे हैं चाइना के साथ में, फिर जर्मनी ने भी अपने जो इंटरडिपेंडेंस है रशिया के साथ में, और फ्रांस के प्रेसिडेंट है मैक्रोन, उनके भी अच्छे रिलेशन है पुतिन के साथ में। फिर इन्होंने क्या कहा है कि हाँ, जो मैंने आपको बताया था पॉइंट, यूरोपियन यूनियन ने डिसाइड करा एक अल्टरनेटिव चैनल ईरान से ऑयल खरीदने के लिए और डॉलर को अवॉइड करा है यूज़ करने को। फिर इन्होंने कहा है दिस विल ग्रांट प्रोटेक्शन टू यू बैंक, अगर उनसे मतलब अगर डॉलर से अगर वी नहीं कुछ नहीं करते हैं और जो यूरो वगैरह से अपना वो करता है, ट्रेड करता है, तो उनके बैंकों को भी इससे फ़ायदा होएगा। दिस नॉन अमेरिकन मॉनेटरी चैनल टू ईरान इंक्लूड्स चाइना एज ए पार्टी, और इसमें जो उनकी हेल्प करेगा वो चाइना करेगा क्योंकि चाइना के साथ में ईयू के रिलेशन अच्छे हैं। ठीक है, देयर इज ए ह्यूज रिसेंटमेंट इन ईयू विद रिस्पेक्ट टू ट्रम्प डिसीजन टू कम आउट ऑफ द न्यूक्लियर। हाँ, तो फिर इन्होंने यही कहा है कि मतलब जो यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं, इन्होंने ये कहा है कि जो ईरान और यूएसए की जो न्यूक्लियर डील थी उसकी वजह से जो इम्पैक्ट है वो और भी ज़्यादा ख़राब हुआ है, क्योंकि उसने सैंक्शन वगैरह लगा दिए, तो अगर सैंक्शन वगैरह लगा दिए तो कहीं ना कहीं उनकी डील को इम्पैक्ट करेगा। यही कहा है सर उन्होंने। और चेंज एग्रीमेंट अटेम्प्ट्स टू अंडरमाइन डब्ल्यूटीओ, और यही उसमें डब्ल्यूटीओ में भी यही है कि जो यूएस है वो अपनी वो चलाना चाहता है, अपनी चीज़ें मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो अपनी चलाना चाहता है, और इसकी वजह से ही जो रशिया के साथ में जो एक न्यू फेज है कोल्ड वॉर का वो स्टार्ट करता है। हाँ, फिर इन्होंने क्या लिखा है, फिर उन्होंने लिखा है नेटो इज ए कलेक्टिव डिफेंस पैक्ट फॉर्म इन 1949। हाँ, मतलब उसका वही लिखा है मेन की कब फॉर्मेशन हुई, 1949 में उसकी फॉर्मेशन हुई। आर्टिकल 5 जो है नेटो का वो मेंशन करता है कि आर्म अटैक, मतलब किसी भी कंट्री के ऊपर कुछ भी हमला होता है तो वो सब कंट्रियों के ऊपर एक अटैक समझा जाएगा। एज ऑफ नाउ नाटो हैज़ 29 मेंबर्स, अभी 29 नहीं है 30 मेंबर्स हो गए हैं इसमें। द लास्ट वन टू ज्वाइन वाज Montenegro in 2017, Bosnia, Herzegovina, Macedonia, Georgia and Ukraine are the prospective members। अभी 30 हो गए पर इसमें। हाँ ठीक है, मुझे लगता है आपने समराइज में पढ़ने से ज़्यादा टाइम लगा दिया। चलो ठीक है, ज्यादा सर की पॉइंट ही बताना चाहिए, मतलब और की पॉइंट भी नहीं, मतलब रिलेट करके कीवर्ड होने चाहिए, इलैबोरेट नहीं करना सर होता है, मैंने वो बस कीवर्ड। रिलेट करके हिस्ट्री, हाँ सर मैंने हिस्ट्री के साथ रिलेट करने की कोशिश करी थी। नहीं सर कोई बात नहीं, आप बता रहे थे अच्छे से बता रहे, इसलिए रोका मैंने भी, कोई बात नहीं। चलो थैंक यू वेरी मच यार। अभी नेक्स्ट चालू करना है ना सर, अपने को नेक्स्ट टॉपिक करना है ना सत्यम सर? नेक्स्ट टॉपिक कोई है नहीं, मतलब ये इसमें नहीं है क्या कुछ? मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। इसमें नहीं है क्या कुछ अपने ये डॉक में? इसमें कुछ नहीं है, इसमें नेटो के बारे में कुछ नहीं दिया है। ओके ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप। थैंक यू वेरी मच गाइस, हम लोग टॉपिक 8 चालू करेंगे, जस्ट अ सेकंड।